Hello and welcome to the State of Culture. Ramesh Mehta was a writer, producer, director and actor who was one of the pioneers of Hindi theatre in the capital. He counted presidents, prime ministers and film stars of the country amongst his audience. In fact, Pandit Jawaharlal Nehru had commissioned him to write a play about post-independent emerging India in the 50s, and he wrote Hamara Gaon. Ramesh ji passed away in May this year, and Three Arts Club and Katyayani organized a festival of three of his most popular plays as a tribute to him. Our report. Three Arts Club and Katyayani Theatre paid tribute to Ramesh Mehta, one of the pioneers of Hindi theatre in the capital. The event, called the Ramesh Mehta Festival of Hindi Comedies, was presented over a weekend with the inclusion of three of his most popular social satires, Paisa Bolta Hai, Uljhan and Under Secretary. The Three Arts Club, with whom he was most closely associated, organized an exhibition of old photographs showcasing the playwright, director, actor's work, which was popular in the 50s and 60s, and his distinguished audience that included India's presidents, prime ministers, film and theatre stars. कात्यायनी एंड थ्री आर्ट्स क्लब ने मिलके रमेश जी को श्रद्धांजलि देने का सोचा, और ये हमारा छोटा सा प्रयास है उन्हें याद करके उनके 3 नाटक इस फेस्टिवल में प्रस्तुत करने का। The event was inaugurated by Dr. Anuradha Kapoor, director of the National School of Drama, and filmmaker Shekhar Kapoor, both of whom had watched his plays as children. Apart from the chief guests, Ramesh Mehta's family was also honored. His plays, which were written in the 50s and broke all records of popularity, deal with issues that are still relevant. His themes mostly spoke about middle-class hypocrisy and the masks that people wear, to which the audience responded enthusiastically. The first play was Paisa Bolta Hai, which is the story of a poor man who works as a domestic servant and the way his luck changes with his winning a lottery. The production opens with playful moments between the two servants, Panchu and Tara. बताई तो नहीं कौन से रिश्ते से मासी भाई? गांव के रिश्ते से, समझी? का रिश्ता बनाए रही गांव का रिश्ता से? अरे गांव में तो गाय का बछड़ा और भैंस का पड़वा भी रिश्तेदार होते हैं। जाके खोल देना दरवाजा, कूद के Panchu, who considers himself a member of the family he lives with, is maltreated by them. They abuse him verbally and physically. मासाजी, मासी ने कहा था। खामोश! का बच्चा, मासी जी ने कहा था, बर्दाश्त नहीं का। ये फूलदान किसने तोड़ा? गधे गधे के बच्चे, ये घर दूसरा भी तोड़ दिया। ये घर ये आंखें नीचे कर, करता कि नहीं? जा रे, दीदी के लेकर आओ, दूध लेकर आ। क्यों जा रे? इस गंदे आदमी से मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे तो घिन आती है। अच्छा, मैं ही बना देती हूँ तेरे लिए तुम्हें। अरे, ये क्या? ये पंचू रोवा दे रे पंचू। वो अकेला छोड़ दे तारा। The only person who is empathetic is Tara, who loves him. सफाई हम कर देते हैं। तोरा नौकरी करे का मन नहीं, तो मत कर नौकरी। है? तू चल हमरा के साथ हमरा घर। तोरे रोटी कपड़ा की चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, पंचू भैया, कहीं जा रहे हो? Despite despising him, the family does not hesitate in exploiting him. बहुत अच्छे हो, इधर आओ ना। मेरा एक काम कर दोगे? अरे वो मोहन है ना, वही, उसके घूंघर वाले बाल हैं, सफेद कमीज और जीन्स पहनता है। वो सड़क के मोड़ पर लैंप पोस्ट के पीछे खड़ा है। उसे जाकर ये चिट्ठी दे दोगे? वो आप
आपकी बेटी का क्या नाम है? The family itself is dysfunctional. The daughter is on her own trip, and when her shenanigans are revealed, the family members lie through their teeth to combat the embarrassment. अरे सुबह के लिए माफी चाहती हूँ, दोपहर 1:30 बजे कुतुब के बाद मिलना। डार्लिंग मोहन। One of the highlights of the play was the inclusion of octogenarian B.L. Tandon, who was part of the original cast in the 1950s. He got an appreciative round of applause from the audience. हर प्ले में रमेश जी ने मुझे लिया। हम प्ले से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले हम दोनों कुश्ती लड़ा करते थे। कुश्ती में एक दूसरे को ऐसे प्रचार करने के बल्कि जोश पैदा करने के लिए हम कुश्ती लड़ते थे और उसके बाद हम प्लेस करते थे। आराम से बता दे, ये चिट्ठी किसको देने जा रहा था? अरे पंचू बेटा, बता दे बेटे, बता दे। लड़की को देने जा रहा था। लड़की नहीं मास्टर, लड़का है। वाले वाले उसके सफेद कमीजा जेंट्स पहनता है, तो दादा को साले कहता है। उसका नाम है मोहन। अरे ये कहाँ हमारे घर नजर ही हो पंचू। Panchu is ordered out of the house, but a quirk of fate keeps him in it. निकाल जल्दी से। मिस्टर, ये घर में हो रहा क्या बता रहे? अगर इस कमीने से बात करनी है ना, तो घर से बाहर निकल के बात करो। हाँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। अरे निकाल जल्दी से, बहुत सारा रुपया मिलने वाला है। लॉटरी निकाल आई है। आखिर अभी भैया बात क्या है? बात क्या हो सकती है? आप जो सलूक कर सकते थे वो कभी न रहे थे ना। मैंने एक लॉटरी का टिकट पंचू को दिया था। अगर बात बन जाए तो बात बन गई है। तो बता दो बल्ली भैया, रुपया कितना मिलने वाला है? हाँ, पहले एक बाल्टी पानी मंगवा लीजिए। उसे ही स्वाद आ जाएगा। कि कौन से दिनों के पानी? 1 करोड़। The money brings a drastic change of attitude in the family. The most reviled person becomes the one who is most fated. कैसा बोलता है? इतनी अच्छी चाय बनाई माँ, पंचू भैया को पसंद। But they all have their own axe to grind and want Panchu's money for their own ends. इसकी शादी तुझे ही करानी है। तुम मेरे साथ चलो। चलो भैया चलो। हाथ छोड़ दो उसका, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अरे छोड़ो, बेटा तुम आओ मेरे साथ। भैया, do not break your promise. I said do not break his legs. छोड़ दो मुझे। ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई पागल हूँ? हैं? ये सब पैसा मेरा है, जो जी में आएगा करूँगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उड़ाऊंगा, और जी में आया तो नदी में फेंक दूंगा। आप लोगों को नहीं दूंगा। ये सब पैसा भगवान ने मुझे दिया है, किसी को ना दूंगा। हाँ, अब लो, सभी बांट लो। The pampering turns Panchu's head, who emulates his masters in assuming an attitude. This causes a fight between him and his lady love Tara. सर पे कोई भूत सवार हो गई है क्या? जाके अपने सर का इलाज करा के आ। हाँ? ए तारा, खबरदार जो मैं तू करके पुकारा तो तू पंचू का बेइज्जती करती है क्या? हमें ना दिखाई आँखियाँ निकाल के। हाँ, तू हमें कैसे चूके के पुकारा था? हमार बेइज्जती नहीं होता। खबरदार जो हमरा के चूके के पुकारी तो। हाँ, रूठे थे तो जा रूठ जा हमार बला से। तू क्या करने आया है? मैं मैगजीन ले। इडियट कहीं का। चलो देखो। हम लोग यहाँ पागलों की तरह फसाद कर रहे हैं और ये कमीना मजे से तमाशा देख रहा है। Unfortunately, it is discovered that he does not, after all, win the lottery. The family loses no time in assaulting him and throwing him out of the house again. Does Panchu fight back? Will destiny do another U-turn? The answer is in the play, which repeats on November 18 at the Epicenter in Gurgaon. तो ये हमारे कसम है पंचू, अब तू चल हमारे साथ। अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, ये ले अपना सामान और दफा हो जाए यहाँ से। और तुम भी। आज का प्ले देख के पैसा बोलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा
क्योंकि ऐसा प्ले हमें, मेरी मेमोरीज़ में मुझे याद है बहुत साल पहले, 30 साल पहले, कि इसका कितना इम्पैक्ट होता था ऑडियंस पे और ऑडियंस इसको कितना एंजॉय करती थी। तो आज देख के मुझे यही लगा कि आज भी इसकी पकड़ ऑडियंस पे, इसकी कॉमेडी की सारे मोमेंट्स ऑडियंस बहुत एंजॉय करती है। तो इसका रिवाइवल बहुत मुझे मज़ा आया देख के और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और इसके लिए जो सोहेला ने काम किया है वो बहुत बहुत अच्छा है। इस तरह से कि इस किस्म का रिवाइवल हमें मुश्किल से मिलता है, और ये इस किस्म के रिवाइवल में जो पुराने तरीके से डायलॉग बोलना, उसका पॉज लेना, उसको ऑडियंस की तरफ पहुंचाना, इस सोहेला ने बहुत अच्छी तरह से किया। और ये याद भी आया कि कॉमेडी नाटक किस तरह से हमें एक तरह से खुशी का माहौल देते थे, मज़ा आता था, हम लोग हंसते थे जब हम लोग देखा करते थे रमेश मेहता जी की परफॉर्मेंस, उमा साहे की परफॉर्मेंस, और आज इन सब परफॉर्मेंसेस को देख के उतना ही मज़ा आया। We're going in for a short break. Stay with us. बारिश का मजा तो सब लेते हैं, पर बारिश का पानी बचाने की बात कौन सोचता है? हाँ? बारिश के पानी का संरक्षण करें ताकि पानी की कमी ना हो और आप जिंदगी का यूं ही मजा लेते रहें। जल्दी मेरा बैग दो, बस मिस हो जाएगी। लाया भैया लाया। बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। ये कानून 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को काम में लगाने से रोकता है। बाल श्रम रोकिए, बच्चों को काम नहीं, पढ़ाई का अधिकार चाहिए। उनकी सही जगह स्कूल है, ये उनका हक है। 4, 5, 6 पंजे 30। अरे वाह, दिमाग तो हवाई जहाज थे। हवाई जहाज नहीं, रॉकेट। हाँ, रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। हाँ? मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार नहीं होगी, खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। ये तो बड़ी दूर की सोची आपने। तू भी सोच, घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। साजिद कुमार अपनी आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी हर्बल दवाएं बनाने वाली कंपनी को आयुष मार्क सर्टिफिकेशन मिलने के बारे में कहते हैं। हम शुरू से ही अपनी पूरी विनिर्माण प्रक्रिया में गुणवत्ता का खास ख्याल रखते हैं। आयुष मार्क से हमारे कारोबार को काफी फायदा हुआ है, क्योंकि ग्राहक अन्य दवाओं के मुकाबले हमारी दवाएं खरीदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुणवत्ता के कई मापदंडों से गुजरने के बाद ही आयुष मार्क दिया जाता है। हमारी गुणवत्ता के भरोसे का प्रमाण आयुष मार्क का निशान। 2 रातें और 3 दिन, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? क्या आपका ट्रैवल एजेंट ये वादा पूरा करता है? 2 रातें और 3 दिन, यही कहा था ना आपने? यस सर। पर 17 की आधी रात को हमें क्रूज पर चढ़ाया और 19 की दोपहर में उतार लिया, मतलब 2 रातें और सिर्फ 1.5 दिन। ये तो सरासर धोखा है ना? सॉरी सर, हमारी यही पॉलिसी है। अरे जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये व्यापार का गलत तरीका माना जाता है, इसलिए कंज्यूमर फोरम ने निचली फोरम के 25,000 रूपए के फैसले को भी मान्यता दी और 5,000 रूपए भी दिलवाए और अपने खर्चे से ये गलत विज्ञापन बदलने का हुक्म भी दिया। जागो ग्राहक जागो। क्यों? भूख लगी है। साबुन से हाथ धुलेंगे तो सेहत रहेगी। दाल की खुशबू, इसके प्रोटीन का जादू। रोज हरी सब्जी क्यों? इसकी आयरन की शक्ति से होगा कौन? और मेडल भी। बच्चों का अधिकार है शिक्षा और पौष्टिक आहार जो दे चुस्ती, खेलकूद और पढ़ाई के लिए। अब पढ़ना पक्का। मिड डे मील योजना का लाभ देश के 11 करोड़ से भी अधिक बच्चे पाते हैं। ए बंद करो, निपट गया भैया। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। बहू
फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये पानी मेरा है। मेरा है। नहीं, मेरा है। तेरा मेरा मत कर सासू, ये पानी तो सबका है। थोड़ा थोड़ा बांट लो इसको, ये पानी तो सबका है। कैसे ये मुश्किल हल होगी, हम सबको ये सोचना है। पानी बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भविष्य से बचने के लिए पानी बर्बाद ना करें और बारिश के पानी का संरक्षण करें। भाइयों और बहनों, चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है। बाबा हम वहाँ बैठे। इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुने। नहीं, हम वहाँ नहीं बैठ सकते। माँ हम पानी वहाँ से क्यों नहीं भरते? क्यों? चल, देर हो रही है। माँ मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते? इसके सभी सवालों का जवाब है शिक्षा। और अब तो स्कूल जाना है हर बच्चे का अधिकार। अब तो मेरा भी पढ़ना पक्का? हाँ पक्का। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार। अब पढ़ना पक्का। मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किस्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किस्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली। और जब मिस्टर शर्मा किस्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। बेच दी? सॉरी सर। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। सुबह उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दिए बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए। वहाँ फैसला ये हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू, और जब से कंप्लेन लिखवाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। Welcome back to the State of Culture and a glimpse at the Ramesh Mehta Festival of Comedies. The next day, it was Uljhan, the story of Banarasi Das, a narcissistic bachelor and his penchant for the good life, even if it meant living beyond his means and being in debt. Ramesh Mehta displayed remarkable foresight in sketching this character. Although written in the 1950s, it is very contemporary. आप लोग हैं जी? बैठो जी बैठो। और बाबूजी घर पर है क्या नहीं? अजी सर जी तो कहीं बाहर गए हैं बाहर। ओ बरादर चलो फिर देख लेगा साले। हाँ चलो चलो हमें मिली। और हाँ बाबू को बोल दिया पहाड़ी, सरे बाजार अगर उसकी गुद्दी न नापी तो सीताराम टेलर मास्टर नहीं। हाँ नानक चंद होटल वाला। और जुम्मा खान भी पठान का बच्चा है, कबर खोद के साले से पैसा वसूल कर लेगा। चलो निकल आओ सर जी निकल आओ। चले गए? चले गए, लेकिन अभी सिर्फ घर से गए हैं, दुनिया से नहीं। अरे सब ठीक भी तो है चाची, मुझे छोड़ कोई दूसरा लीचड़ किराएदार नहीं तुम्हारे यहाँ, सब टाइम पर किराया दे देते। Banarsi's troubles are compounded by his landlady, who eyes him for her daughter, because of which he lies about his marital status. आदमी कैसे हो सकता है? वैसे तो एक दिन देखना मैं तेरे को बेटा बना के छोड़ूंगी यार। अच्छा मुझे क्या गोद लेने की सोच रही हो? हाँ ऐसा गोद लूंगी मैं कि तुम और मेरा लक्ष्मी सारा जायदाद का वारिस बन जाएगा। अरे क्यों मजाक करती हो चाची, मेरी जीती जागती बीवी मौजूद है। फिर वही झूठ है, बड़ा रास्ता। ये नमस्ते। The plot develops a new twist with the entry of a young woman called Shakuntala. तशरीफ रखिए। बनारसी दास आप ही हैं? हाँ जी मैं हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी आगरे से ब्रिजमोहन टंडन ने आपके लिए चिट्ठी दी है। ब्रिजमोहन टंडन? आप उसे जानती हैं? जी हाँ वो हमारे पुराने मुलाकाती हैं। आगरे में वो मेरे पड़ोसी थे। जी जी।
चाची चिट्ठी तो पढ़िए आप। ओह, तो जी आप एक लेडी डॉक्टर हैं? जी हाँ, मेरा नाम शकुंतला सूद है जी। वो चंद मजबूरियों के कारण आगरा छोड़ना पड़ा। अब डिस्पेंसरी का तो इंतजाम हो गया, लेकिन रिहाइश का कोई इंतजाम ना हो सका। 2-4 दिन तो होटल में काट लिए हैं। अब आपको तकलीफ देने आई हूँ। अजी नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, वैसे भी मेरे पास एक कमरा फालतू पड़ा है। कौन है? बाहर निकल। वो साले देख लिया मैंने छुपते हुए, बाहर आ। साले बाप से छुप रहा है तू? अबे खोते में पुन्ना नहीं धरा तू। मैं बड़ा मोटा हो गया है। Hot on the heels of Shakuntala walks in Banarsi's good friend Prannath, who wants to stay a few nights with him, complicating the situation further. इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट हो गया हूँ। अब बात ये उस्ताद, 2-4 दिन तेरे यहाँ रहेंगे, हैं? 2-4 दिन तेरे यहाँ टिकेंगे, अब नाटक मत कर। ओ नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। देख, मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ। देख बुरा मत मानना, हमारा आज ही हमारी मकान मालकिन से झगड़ा हो गया है। वो धौंस देकर गई है कि शाम तक बीवी को ले आओ, वरना तुम्हें बाहर फेंक दूंगी सामान समेत। शाम तक बीवी? हाँ। अबे बीवियां क्या बाजार में मिलने लग गई? काश मिलती यार, 2-4 ले आता। तो अब क्या इंतजाम कर रहे हो भाई? अरे यार इंतजाम कर नहीं रहा हूँ, अपने आप हो गया है। क्या मतलब? अबे तेरे आने से पहले एक लड़की आई थी, लेडी डॉक्टर, अपने बिरजू टंडन की चिट्ठी लेकर। बिरजू टंडन? वो अपना आगरे वाला? हाँ आगरे वाला, बस वो अपना सामान लेकर आती होगी। पर बेटा उसे ये सारा चक्कर समझा दिया है? यार जब आएगी तो समझा देंगे, कौन सी जल्दी है। मैं इस मकान की मालकिन, मुझे आज जो आता जाता सबका आता खाता हूँ ना। हाँ तो कान खोल कर सुन लो, मेरी धर्म पत्नी अपने सामान सहित भाई साहब को लेकर अपने आप आ गई हैं। और ये हाँ, ये है मेरे साले साहब प्राणनाथ जी। प्यारी पड़ा आंटी। आइए शकुंतला जी। मैं चाहता हूँ कि आप घर में कदम रखने से पहले हमारी मकान मालकिन के चरण छुएं। मैं इन्हें अपनी माँ से बढ़कर समझता हूँ। सास समझ के ही छू लो बहना। मैं बनारसी का बाबू हूँ और मेरा नाम है चौधरी प्रभुदयाल। हेलो। Banarsi's troubles are now compounded by the arrival of his feudal father. The irate landlady spills the beans about Banarsi's fake marriage, leading to mayhem. मतलब नहीं समझा? मतलब नहीं समझाती। हाँ? 3 साल 4 साल हो गए, किसी का चेहरा दिखाई नहीं दिया। आने लगे तो ताता बांधे। हाँ? पहले बनारसी का बीवी, फिर बीवी का भाई, अब बनारसी का पिता। कल ना जाने उसका ससुर आके टपकेगा। अरे कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हैं आप? हैं? मैं बनारसी के सगाई की बात करने तो यहाँ आया हूँ, और आप हैं कि कद्दे उसकी बीवी की, और भाई कद्दे उसके साले की आंख रही हैं। भाई की बातें करता, और तुम्हारी बुद्धि है बिल्कुल कायम। अब मैं ही बताता तुम्हें। सिंगार बॉक्स, लेडीज। इधर लिपस्टिक। लिपस्टिक। ता इसका मतलब तने शकुंतला के लिए ब्याह कर लिया भाई? ना किसने कही झूठ करती झूठ। ता एक गैर लड़की तने बिगर शादी के घर में बसा रखी है। ना बाबू वो गैर की है, वो तो जो मेरा आगरे वाला दोस्त है ना बिरजू टंडन, उसकी सागी बहन है, लेडी डॉक्टर है, कुछ दिन खातर आई है। What happens next is in the rest of the story. गलती का एहसास है? हाँ है। मन में इस बात की खुशी है भाई। This play repeats on November 17 at the Epicenter, Gurgaon. और शाम की गाड़ी से चीन चला जाऊंगा। अच्छा। एक बढ़िया से आदमी के लिए तेरी सगाई की बात कर रखी है। आदमी की गेल? उसकी भतीजी के लिए। अच्छा। सामने वो आओगा, राय कायम कर लिए। पर पिताजी इब्बत मेरा कोई इरादा ना है ब्याह करने का। वो बाद की बात है बेटा। हैं? छोर इकलौती है, बाप गया मर, जायदाद की कोई कमी नहीं, और आण आड़ा उसका चाचा पूरा बंदर। चाय बना ले। अरे पहले से 100% बढ़िया हो गया है। On the third day, Mehta's most popular play, Under Secretary, was showcased. Under Secretary talks about the middle class's passion for keeping up with the Joneses,
In other words, portraying what one was not to impress another. आज से बाबूजी को बाबूजी ना कहना। और क्या कहूँ जी? साहब कहकर बुलाया करो। दफ्तर में उनकी तरक्की हो गई है। अच्छा जी, कोई बड़ा ओहदा मिल गया है क्या? हाँ, अब वो क्लर्क नहीं रहे, अफसर हो गए हैं। पहले असिस्टेंट थे, अब अंडर सेक्रेटरी हो गए हैं। Saroj, the protagonist, is in panic because a childhood friend married to a senior bureaucrat is visiting her with her husband. Saroj cannot bear the humiliation of declaring the true vocation of her husband, which is that of a mere assistant in a government department, and she lies about him being promoted to the level of undersecretary. वो मैंने सुना नहीं था जी। सुना नहीं था। और ये घर को क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, बस बैठक की तरक्की कर दी है, घटिया चीजें हटा दी है और बढ़िया चीजें लगा दी है। लेकिन ये सब कुछ किया किसने है? मेम साहब जी ने। कौन सी मेम साहब ने? अजी आपकी मेम साहब जी, बीबी जी। सरोज ने। अरे आप आगे डार्लिंग। डार्लिंग गए जहन्नुम में। ये सब क्या गोरख धंधा है श्रीमती जी? ओहो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ना आराम से बोलो, पहले चाय पी लो फिर सब बता देती हूँ। जी नहीं, मुझे ना आराम करना है ना चाय पीनी है। आप मेहरबानी करके ये बताइए, क्या सचमुच ये सारा सामान खरीद कर मेरे 10 साल की कमाई हुई पूंजी दोनों हाथों से लुटा दी है? जी नहीं, ये सारा सामान सिर्फ 2 दिन के लिए किराए पर लिया है। किराए पर लिया है? क्यों, किस लिए? भाई कौन सी मुसीबत आ गई? वो बात दरअसल, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि मुझसे नाराज नहीं होगे। नहीं, कहो। मैंने अपनी सहेली से हमेशा यही कहा है कि मेरे पति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडर सेक्रेटरी है। मैं और अंडर सेक्रेटरी? जी हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सचमुच एक दिन मेरे घर आ धमकेगी। आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और आपकी इज्जत में रत्ती भर भी कमी होना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शुक्र है भगवान का, ज्यादा प्यार करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी नहीं कह दिया, वरना क्लोरोफॉर्म सुनना पड़ता। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आप? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। यही दिल्ली में? जी नहीं, समुद्र किनारे मुंबई में। वैसे आप मेरी भाभी की सहेली है ना? सहेली ही समझ लीजिए। वैसे आज हमारी पहली मुलाकात है जैसे आपसे। वैसे नाम क्या बताया आपने? किशोर। नाम तो बड़ा फिल्मी है। ठीक है, फिर आप मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ मिस्टर किशोर, कल का लंच आप मेरे साथ कर सकेंगे? क्यों नहीं, बिजनेस के बारे में बातचीत भी हो जाएगी। A young rascal of a friend, Kishore, who has been trying to impress a sales girl, Kanta, offers to play the second servant, but it is not to be. ये क्या बात हुई? अंडर सेक्रेटरी का नौकर है, किसी पंसारी का थोड़ी। तो नौकर के साथ साथ साहब की भी तो पर्सनालिटी होनी चाहिए। रहने दो तुम। अफसर ही अगर पर्सनालिटी में मिलने लगे ना, तो दफ्तरों में आधे अफसर क्लर्क हो जाएं और आधे क्लर्क अफसर। ये दफ्तर नहीं, घर है जनाब। यहाँ पर सारी चीजें दिखावे की हैं, असलियत की नहीं। तो क्या कहना चाहती हो? मैं नौकर बन जाऊं और वो अंडर सेक्रेटरी? आइडिया। जब सब कुछ झूठ ही है तो क्यों ना थोड़ा सा झूठ और सही। तैयार हो जाइए किशोर भैया। मुझे मंजूर है। अब मैं अपनी सहेली से पति की पर्सनालिटी में भी जीत जाऊंगी। बिल्कुल नहीं बदली पुष्पा। The classy friend and her husband enter the scene and are suitably impressed. What follows are a series of airy and superficial conversations. इसकी साज सजावट तो बड़ी बड़ी कोठियों को मात कर रही है। देखा वरना साहब, ऐसे सजाया जाता है घर। बड़ा घमंड करते थे अपनी बैठक का। भाई खूब, बहुत खूब। अरे ये सब कार्यवाही तो आपकी सहेली की है पुष्पा जी, वरना हमें तो दफ्तर के कामों से फुर्सत ही कहाँ। भाई हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है मिस्टर भटनागर। घर गृहस्थी का चार्ज तो हमने श्रीमती जी के हाथों में सौंप रखा है। हम तो दिन रात सरकार की सेवा में मगन रहते हैं। ओहो, और ऐसे मगन रहते हैं कि घर गृहस्थी गई चूल्हे में, कोई जिए या मरे इनकी बला से। कहाँ रखना है मेम साहब? तो कहिए, क्या बातें हुई? पहला इंप्रेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। घर की सजावट देखकर आंखें चंदिया गई हैं दोनों की। हाँ,
पर नौकरों के डिपार्टमेंट में बाजी मार गई। पूछते ही बोली, ड्राइवर मिला के 4 है। अरे तो क्या हुआ, साड़ियों के मोर्चे पर मैंने वो दांत खट्टे किए कि जिंदगी भर याद रखेगी। तो आप मेरे साथ शायरी कर रहे थे? Kishore's theatrics creates obstacles in the way of his romance with Kanta. आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। और इसकी वजह मैं हूँ कांता। अब मैंने ही मजाक मजाक में कह दिया था कि ये मेरे देवर हैं। और दरअसल ये आपके पतिदेव है। जी हाँ। वाह, क्या ओछा मजाक पाया है शायर की बीवी ने। आपका क्या शौक है? अफसाना नपीसी? तमीज से बात करो मिस सेठ, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? घर से निकाल दोगे? मैं खुद ही जा रही हूँ, आपको कहने का कष्ट ना कीजिए आप। सुनिए, मैं आज तुझसे झगड़ा करने आया। The obstacles are further compounded by the entry of the grandfather, an upright, honest and fierce ex-brigadier who threatens to topple the whole pyramid of lies. इनसे मिलिए, ये है मेरे मित्र श्री R.K. वर्मा। हेलो सर। हेलो हेलो। और ये है उनकी पत्नी पुष्पा जी। Lottie Alaric, an anchor with Lok Sabha Television, made her theatrical debut with this play. और हाँ, आप खुद कौन है श्रीमान? जी मैं आपका चरण सेवक, आपका पोता। मैं तुम्हारा स्टेटस नहीं पूछ रहा बरखुरदार, नाम पूछ रहा हूँ, नाम। जी हाँ, चांद नारायण भटनागर, आपका पोता। वाह साहब वाह, पोता मेरा और पहचान आप रहे। ये सिर्फ आपत्ति की बात है दादा। साहेब जी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि बस आज के लिए पागल बन जाइए। तो मैं पागल बन जाऊं? Attention! पीटी परेड का वक्त हो गया है। हुक्म मिलने पर घर का सब आदमी डबल मार्च करेगा। डबल मार्च, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ये क्या हो रहा है दादा? नो दादा, डबल मार्च, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। खेल हो रहा है मिस्टर भटनागर। एक खेल की बच्ची, चल लाइन में। जो आदमी रुकेगा या लाइन से बाहर होगा, गोली लड़ा दिया जाएगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट। That's all, folks, in this episode of The State of Culture. We will return next week, same time, with yet another event that regaled Delhiites. Till then, goodbye.